Assalamualaikum ټولو ملګرو ته دعا او سلام. نن مونږ بیا نیکسټ ویلاګ شروع کو او تاسو امید دی چې شاته کوم اپیسوډ چې دی کوم پارت چې دی به تاسو کتلی وي د هونزا عطاباد لیک هونزا او دا به تاسو لیدلی وي. نو اوس چې کوم دی نو مونږ په هونزا کې په هوټل کې موجود یو او سهار 9 بجې دي. اوس مونږ کوشش کوو چې مونږه التیت او بلتیت کم کلی چې دی کم ماحول چې دی تاسو ته هم وښایو. نو مونږ اوس 9 بجې پاسېدو او 9 بجې ټایم ځکه مونږ پاسېدو چې هلته 9 بجې باندې دا مطلب قلعې کولاویږي. 9 بجې کولاویږي او 5 بجو پورې 5:30 بجو پورې وي. نو راځئ زموږ سره اوسېږئ او ځئ چې ځو نیکسټ ویلاګ کې. امید دی چې تاسو به انجوای وکړئ. راځئ. مونږه بلتیت قلعې ته انټري وکړو او اوس دلته چې دی زموږ دوستان ملګري چې کوم دی ټیکټس راواغستو. ټیکټ په څو دا چې دی ټیکټ دی دا د بلتیت فورټ ورته ویلی شي قلعه. نو دا لار ده 600 روپۍ پر هیډ ټیکټ دی او دلته تاسو دا وینئ دا د ناستې لپاره ځایونه دا لارې دا بازار او چې کله انټري کوو تاسو ته به بلتیت ښایو. فی الحال تاسو کوشش کوم چې دا بازار تاسو ته وښیم او دا خلک دا ایریا تاسو ته وښیم. دا چمړې دا چې دا اوریجنل دو هینډ میډ شیزونه دي. زیاتره شیزونه دی کې هینډ میډ دي او تاسو کتلی شئ دا د دې ځای خلک په ویډیو کې راتلل نه غواړي. ما یو کس نه تپوس وکړو ما وی چې دلته کریمینل ریټ څه دی. نو هغه وی چې دلته کریمینل ریټ بالکل زیرو دی. فرض که موږ دا دوکانونه داسې کلاو پرېږدو هم فرق نه کوي. دلته یو جدا دنیا ده جدا قانون دی. دلته ډېر خواږه خلک دی ډېر انفارمیشن هم راکو او دلته ټوریزم چې دی انټرنیشنل ټوریزم هم دلته ما ډېر زیات ولیدو. د دې خلکو په خپل کلچر باندې ډېر زیات فوکس دی. هر طریقه خبرې انداز صرف په خپل کلچر کې کوي. وعلیکم بھائی صاحب. ٹھیک ٹھاک الحمد خیریت. آپ ٹھیک ہیں جی؟ تھینک یو تاسو کتلی شئ مونږ ایز ا ټوریزم دلته راغلي یو. هر انسان سلام کوي ښه بغیده حال چال تپوس کوي. دا تاسو لیدی شئ پته نه څه نوم دی خو دا ټریډیشنل په لاسو تیار شوده شیزونه دي. دا چې دی اوریجنل تیل بادام تیل آلمنډ تیل دا ټول تاسو لیدی شئ. دا چې زما امید دی چې دا به بالکل پیور وي. داسې دي خوبانې ډرای فروټس وغیره دا چې دي که نه دا هم دي. دا هونزا لیکلی دی نګر ډېر زیات سپیشل ځای دی. کلیوال ماحول دی خو کلیوال ماحول کې بیا داسې ماحول دی لکه ایټلی کې یا فرانس کې داسې کلیوال ماحول وي چې هغه په غرونو کې واقع وي. نو هغه ډېر زیات صفایي سره خیال ساتي او د خپل ټریډیشن خیال ډېر زیات ساتي. نو دلته چې کوم دی اوس قلعې ته مونږ انټري آلموسټ مونږ لاره کمپلیټ کړه. فورټینا ګارډن دا هم یو ریسټورنټ دی او تاسو کتلی شئ دا تاسو کولې هم ډایرکټ دا د ونې نه کورسۍ جوړه کړې ده او دا هم فورټینا ګارډن قلعه چې دا دغه ده دا پړاو کوي
دا د دې رولز ریګولیشن دي کوم چې اوس پته نه دي کې ما ښکاري نه ښکاري. کوشش کوو چې ټول تاسو ته وښایو رولز ریګولیشن. دنه موبایل بند ساتي چې کوم ځای ته رسېږي چې دا ځای باندې نه پاکه نه دی نه بل. دا لیکلي دي تقریبا چې لکه فوټوګرافي چې کوئ یا ویډیوګرافي چې کوئ نو تاسو به هغې لپاره فیس جمع کوئ. کله چې تاسو بره لاړ شئ نو ستاسو بیګز وغیره دا چې دي دا به جمع کوئ. او دې نه علاوه چې کوم تاسو ته کوم وایرز لګېدلي دي چې دې نه دا به نه کراس کوئ نو هغه تاسو ته مطلب ټوټل ډیټیل تاسو ته رولز ریګولیشن تاسو ته ښایي په دې بورډ کې چې څه شیزونه چې پراته یا به نه ټچ کوئ. دا قله ده او مختلف لینګویجز کې د دې هسټري بیانه شوې ده. تاسو د دې هسټري دلته کتی شئ په انګلیش کې په دنیا کم اردو کې ده او دوه اردو کې ده انګلیش کې ده او یو د دې خپل کم ثقافتي لینګویج چې کم دی هغه ده. دا دې ته ویلی شي بلتید قله او دې نه شاته دا غرونه چې کم دي دا پهاړي علاقه ده. ټوټل اوس هم دا د جون میاشت ده جون دی او دا پهاړي علاقه دلته واوره هوا بالکل یخه چلیږي او زما په خپل ځاني ډېر زیات خوښي دا پخواني ځایونه وي کوم ډېره غټه هسټري پرته وي د دې او ډېر زیات فیلینګ خلکو ته راځي چې او مخکینی وخت څنګه و اوسنی وخت خو موږ ته پته ده خو مخکینی وخت څنګه و داسې فیلینګ یو انسان ته راشي چې کله هغه داسې قسم پخواني ځایونو کې وګرځي دا تاسو کتی شي. دا یو قله وه کلی و دې ځینه باقاعده جنګونه کېدو او ډېر په هایټ باندې دی که نه تاسو کتی شئ دا ډېر زیات په هایټ باندې دی. تاسو سره اوس په قله کې دننه میلاویږو. راځئ دا چاینیز هم راغلی. Hello sir, how are you? Where are you from? Hi, hello. South Korea. South Korea. How are you? How's your tour? Where are you from? I'm from here, from Pakistan. Hunza. No, from KPK. We are not from Hunza. We are from KPK, Islamabad, another side in Pakistan. الته چې دی ګایډ ټور ملاویږي او شاید چې ما غلطي وکړه زه دې طرف ته رالم ولسم زمونږ سره په ګایډ ټور شته ګایډ ټور به هم وي. सरकार का ख्याल रखे او अपने सर का ख्याल रखे. ما وی کې زه د خاص اوس په موږ چشمې لري کو دا قله د دننه طرف ته ډېر پخواني. السلام علیکم. دلته به اوس موږ ته انفارمیشن میلاویږي. د فوټوګرافي او ویډیوګرافي چې دی دلته ایکسټرا سفیس موږ نه دی اخیستی. دا کوم چې پخواني لوښي او دا شیزونه دي دا اوس ټور ګایډ راغی او دا به اوس موږ ګایډ کوي چې دا څه دي د چا دي. دا ټوټل ډیټیل کوشش کوم چې په شارٹ ویڈیوز کی تاسو ته وښیم. मैं इस किले का एज ए टूर गाइड काम करता हूँ. जितने भी मोजिज़ मेहमान ग्रामी आते हैं थोड़ा सा हम किले के बारे में इंट्रोडक्शन कराते हैं. सतह समंदर से अगर बात करते हैं तो इस टाइम मोजिज़ मेहमान आप 2500 मीटर की बुलंदी तक पहुंच चुके हैं प्रॉपरली. इस जगह तक अगर आप मेहमानों के लिए बात करते हैं तो 8322 फीट पे है. अब स्टेप किला बाल्तीत में है. हुंजा में हमारे पास 2 किले हैं. किला आलती दूसरा किला जो है ना किला बाल्तीत कहते हैं. ये दोनों किले एक ही हुक्मरान एक ही फैमिली के रह चुके हैं.
पहले हुंजा के हुक्मरान जो थे किला आलतित में रहा करते थे। किला आलतित की अगर बात करते तो किला आलतित कोई 1000 साल पुराना किला है। उसी के 100-200 साल बाद वो शिफ्ट हो गए किला बाल्तित 800 साल। एक ही टाइम में किला बाल्तित तामीर भी हो चुके हैं। 800 सालों में बहुत सारे एडिशंस इस किले में हो चुके हैं। अगर इस किले में बड़ी चेंजिंग की अगर बात करते हैं तो 1891 ब्रिटिश पीरियड में जब यहाँ पे ब्रिटिश पहुंच चुके थे उनके दौर में यहाँ पे बालकनीज, व्हाइट वॉश, स्टेन ग्लासेस, विंडोज, ये सारे के सारे एडिशन ब्रिटिश कर चुके हैं। 1945 से किला जो है मीर फुंजा के ज़ेर मलकियत रहा। फिर 1945 में मीर मोहम्मद जमाल खान उन्होंने इस किले को खैरबाद करके यहाँ से चले गए एक नया महल करीमाबाद में है। आजकल इनके फैमिली से मॉडर्न हाउस में रहते हैं। फिर 1945 से लेकर 1990 तक ये किला खाली रहा। लॉन्ग टाइम 45 इयर्स। किले की मुमकिन देखभाल न होने की वजह से कुछ फ्लड्स तक गिर चुके थे, दीवारें अलग हो गए थे। तब इस किले को सीरियसली आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान की तरफ से लगा था। पर यह किला प्रिंस ऑफ हुंजा के मलकियत होने के नाते हमारे पास अभी करंट जो प्रिंस ऑफ हुंजा जो है मीर गजनफर अली खान इज द एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। उनकी फैमिली ने अपनी मलकियत पब्लिक के लिए डोनेट कर चुके हैं। ये किला पब्लिक प्रॉपर्टी है। 6 साल इस किले के प्रॉपर्ली रिनोवेशन हो चुका है 1990 से लेकर 1996 तक थ्रू आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट कल्चर जेनेवा भी हिस्सा ले चुके थे। इन 6 सालों में इस किले के ऊपर काफी ज्यादा लागत आने की वजह से 80% प्रिंस करीम आगा खान की तरफ से, बाकी 20% में इनके साथ देने के लिए जिनमें नार्वे रीजन, फ्रेंच गवर्नमेंट, यूएसए या पाकिस्तान के बहुत सारे मुकामी डोनर्स किले के लिए खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इस किले की ओपनिंग एज अ फोर्ट या म्यूजियम की शक्ल में 29 सितंबर 1996 को सऊदी हमारे प्रेसिडेंट ने हिज एक्सीलेंसी फारूक अहमद खान लवानी प्रिंस करीम आगा खान कोई 20-22 ममालिकों के एम्बेसडर्स को दावत देकर इस किले की ओपनिंग कर चुके हैं। अब किले को इसी तरीके से मेंटेन रखने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं। यही हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की एंट्री टिकट फीस इस किले के वाहिद जरिया होने के नाते हम अपने मेहमानों से एंट्री टिकट फीस की शक्ल में कुछ कंट्रीब्यूशन कराते हैं फॉर द फ्यूचर मेंटेनेंस फॉर दिस स्पॉट। आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के किला बाल्तित आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए और स्पेशली मुझे सुनने के लिए। थैंक्स फॉर योर कमिंग। थ्योरी शुरू कर लेंगे। ये एरिया पुराने जमाने के मेक एरिया रहा है यूजिंग द अर्ब रिसेप्शन जहाँ पर प्रिंस ऑफ हुंजा मुकामी लोगों से जो टैक्सेस लिया करते थे, इवन टैक्स पेयर होते थे। यहाँ के लोग गंदम अनाज की शक्ल में कुछ इसी टाइप के छोटे छोटे स्टोरेज में स्टोर करते थे या गंदम स्टोर करने के लिए। स्टोरेज की अगर हाइट की बात करते हैं 9 फीट स्क्वायर जो बना हुआ है 6x6 पे। इसके नीचे से कहीं से निकालने का कोई जरिया नहीं, कोई एक्सेस नहीं। यही से जरूरत के मुताबिक किसी बच्चे को सीधी रस्सी की मदद के थ्रू को नीचे भेजते थे, फिर उन्हीं की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। छोटी रखने का फायदा ये होता था कि यहाँ से कोई आसानी से जाके चोरी नहीं कर सकता था। सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी की निस्बत से यहाँ पे इस टाइप के छोटे छोटे दरवाजे रखते थे। 3 मेहमानों के कदमों के नीचे है, 3 इस साइड पे भी मौजूद है, तो 6 से 7 गोदाम यही पे ही मौजूद है। अभी भी अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के थोड़ा सा गौर कर लेंगे, टोटली हमारे पास 6 महीने की आबादी होती है एंड 6 मंथ कंप्लीटली ड्राई। शायद यंग जनरेशन में इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। हम 12 महीने भी खुश रहे, हमारे पास दुकानें हैं, रास्ता है मेहमानों की तरफ आने के लिए। पुराने जमाने में 6 महीने की फसल एक्स्ट्रा 6 महीने तक स्टोर करके रखा करते थे। इस किले को प्रिजर्व रखने का हमारा असल मकसद जो है हमारी यंग जनरेशन जो आते हैं, थोड़ा सा उनको पास्ट के बारे में पता चले। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान इतने दूर से आप हमारी तरफ सफर करके आते हैं, हम विजिटर्स को थोड़ा सा ये दिखा सकते हैं 600-700 साल पहले पहाड़ी इलाकों में लोगों ने किस टाइप की जिंदगी गुजार चुके हैं। असल मकसद हमारा यही है। ये पुराने जमाने के पैमाने ही यहाँ के लोगों से जो तोड़ के लिया करते हैं, लाइक 1/2 kg, 5 kg या 10 kg जमीन की निस्बत से बने हुए कुछ बर्तन है, डेगची है, हांडी वगैरह पकाने के लिए स्टोन कैसे सॉफ्ट स्टोन वॉल्केनो स्टोन, एक नरम सा पत्थर, इसको तराशने में आसानी होती है। सैडल है और सामने जो रखे हुंजा का पुराना वेपन है, तीर कमान, जो अपनी हिफाजत या शिकार के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लीज दरवाजों से सर का खास एहतियात कीजिएगा। अब रूम्स के तफसीलात की तरफ आगे बढ़ते हैं। दरवाजे छोटे रखने का असल मकसद हुंजा एक सर्द इलाके से हटके थोड़ा सा अगर इन एरियाज के ऊपर गौर करेंगे ना, हवा में नमी नहीं है, खुश्क हवा है। ड्राई वेदर होने के नाते विंटर वेदर गोल्डन ड्राई, ऐसा विद हॉट एंड ड्राई। यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होती है, ठंड की हम बात नहीं कर सकते हैं। तो कमरे को गर्म रखने के खातिर दरवाजे छोटे, दीवार डबल, छत नीचे, छोटे छोटे कमरे टू मेंटेन द रूम टेम्परेचर। साइकिल इन दरवाजों का एक फायदामंद ये भी है कि हम सारे ग्रुप की शक्ल में नहीं जा सकते हैं, जस्ट एक्सेस ओनली 1 पर्सन। अगर इन केस कोई हमलावर हमला कर सकते हैं तो उनको आसानी से ये लोग रोक भी सकते हैं। तीसरा, ये सिक्योरिटी रेजिडेंशियल दोनों में तामीर हो चुका है, क्योंकि प्रिंस ऑफ हुंजा का रिहाइश का इस किले के अंदर है। जो कोई भी आ जाए एहतरामन सर झुका के भी आ सकते हैं, रिस्पेक्ट। और सबसे पहले जो हम टूर शुरू कर लेंगे
चले जी कैद खाने से शुरू करते हैं। دا چې دا کنه دا قید خانه ده امید شته چې تاسو به وینئ सेल प्रिजनर सेल। हमारे ग्रामीण जितने भी हमने स्टील नेट क्रॉस करके फाइनली यहाँ तक आए, स्टील नेट के नीचे जो एरिया है पुराने जमाने का एक हवाला रह चुका है। दूसरे से लिबास यहाँ पर इसमें कुछ रॉयल फैमिलीज के हैं, कुछ मुकामी लोगों के। मेरे करीब में जो है ये प्रिंस ऑफ फुंजा के हैं, उन्हें चाइना से तोहफा मिल चुका। हमारे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात रह चुके चाइना के साथ। 16 सेंचुरी हमारे बॉर्डर करीब होने के नाते अच्छे ताल्लुकात में हम इनके साथ रह चुके हैं। 1920 के दरमियान में जो हुंजा के मुकामी खवातीन की है। तीसरा अगेन प्रिंस ऑफ फुंजा लोकल लिबास, और सामने व्हाइट कलर के जो लिबास है ये गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल लिबास है। मर्द हजरात इसी टाइप के लिबास स्पोर्ट में टूर करने के लिए इंटर हो जाते हैं ना, एक लफ्ज लाजमी उनको मुंह से निकलते हैं, जो ही दरवाजे देख के कहते छोटे यहाँ के लोग बोनेट है। दरवाजे इस टाइप के छोटे ही रखे होंगे। सेकंडली जो ही कमरे में पहुंचते हैं लिबास देते हैं इस टाइप के लोग हैं। इसके अंदर एक के हम 3 भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के लोग या कद के छोटे या इसके लंबे छोटे हुआ करते थे, देखकर बिल्कुल नॉर्मल हमारे करते। लिबास इसी टाइप के रखने के सबसे बड़ी रीजन हुंजा एक सर्द इलाका है। दे वार्म देयर बॉडी, पूरी जिस्म को ठंड से कवर करने के खातिर इस टाइप का लॉन्ग ड्रेसेस यूज किया करते। इनके अंदर मजे मजे के फैसिलिटीज भी है। ये लोग जब कहीं सफर चले जाते हैं, आजकल हमारे पास बैग भी होता है, जमाने में बैग नहीं होते थे, दोनों शोल्डर्स को बांध के वहां पे खाने पीने का सामान साथ लेके जाते थे। रास्ते में इनके पास होटल्स, गेस्ट हाउसेस कुछ भी होते, कहीं पे भी रात हो जाए वहीं पे स्लीपिंग बैग की जगह पे इस्तेमाल करते, उसी के अंदर रात गुजारते थे, फिर वहीं से आगे अपना सफर भी कंटिन्यू करते थे। ये प्यारा सा जो कालीन है 150 साल पुराना कालीन है। इन्हें चाइना से तोहफा मिल चुके थे। इस द हैंडमेड कारपेट। इस कारपेट के ऊपर मैं रिसर्च करने में क्या ये एरिया जो है अंडरग्राउंड, ये प्रिंस ऑफ फुंजा का तिजोरी है, जहाँ पर अपना कीमती जेवरात अंडरग्राउंड छुपा हुए हैं। छोटे छोटे स्टोरेज दो यहाँ पे है, एक सामने वो भी है। मेहमानों की दूसरी साइड भी ये कश्मीर से साथ लेकर आते हैं। अब हम आराम से दोबारा रिसेप्शन पे जाएंगे। अगला कमरा शाही बावर्ची खाने के लिए। वहाँ पर मरगूजात उनको जगह है। देखिए जी मोसेस मेहमान ग्रामी, ये प्रिंस ऑफ फुंजा का शाही बावर्ची खाना है। यहाँ से खाना तैयार करके रूम से एक साइड पे हमने बर्तन जो रखे, कुछ मेटल के बर्तन रखे हुए हैं। उससे पहले 3 लाइन में चटनी रखी हुई है, स्टोन के देचे हैं। गोल्ड सा जो रखे स्टोन ब्लैक पेन, ये तब रखा हुआ चपाती के लिए, गंदम मसाला पीसने के लिए। मेरे करीब में बर्तन जो रखे ये हलवा कद्दू के हैं। पम्पकिंस इनको खुश करके पानी लाने के लिए, पानी रखने के लिए, लिक्विड चीज में चाहे जिसमें लस्सी हो। ये लकड़ी का जो इसमें लस्सी बनाने के लिए ऊपर एक खाल है, मश्क है, मशकीजा है, पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें अक्सर लस्सी भी बनाते हैं। फ्रंट वाले पिलर के ऊपर कुछ चमचे सूप खुबानी की जूस पीने के लिए, और सामने एक छोटा सा लकड़ी का जो डब्बा रखा हुआ है, ये चूहादानी है। एज अ माउस ट्रैप, इज फॉर द माउस कैचर। रात को ज्यादातर दिए जलाते थे। स्काईलाइट आप देख लीजिए, रोशनी का निजाम खूबसूरत सा दरमियान में रखे हुए हैं। ओपन फायर होने के नाते क्रॉस वेंटिलेशन लाजमी रखा करते थे। और इस किले में जो हमारा सबसे पुराना पोर्शन, जो हमारी किचन की छत है, जो ओरिजिनल 800 साल पुराना है, जला हुआ नहीं है। ओपन फायर होने के नाते स्मोक की वजह से कम्प्लीटली ब्लैक हो चुका है। ये बाइयों के साथ एक छोटा सा दरवाजा जो है, यहाँ पे गोश्त खुश करके रखा करते थे। आप ऊपर टेरेस पे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप की तरफ टोटली 2 ही है, एक बच्ची है, और वो बच्चे का टेरेस पे बहुत ज्यादा केयर कीजिएगा। आप में से प्लीज कोई ग्रुप को लीड कर ले, हम आपको फॉलो करते हैं। उसी दरवाजे से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर टेरेस पे चले जाते हैं। बाइक को फॉलो कीजिएगा, वो हमें टेरेस तक लीड कर लेगा।
जी मौजूद मेहमान ग्रामी, आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, कुछ फोटोग्राफी कर ले। जैसे आपके पिक्चर्स कवर होते हैं, किले का हाफ पोर्शन टूर बाकी है, तो हम अपने मेहमानों को फिर आगे टूर की तरफ आके लेके जाएंगे 2 से 3 मिनट फोटोग्राफी टाइम। ओके, हमने आगे से वापस किया है फोटोग्राफी लाजमी करनी चाहिए। जी मोसेस मेहमान ग्रामी, ये कमरा जो है कि 1915 से लेके 1930 के दरमियान ब्रिटिश के ही एडिशनल है। ब्रिटिश पीरियड में यहाँ पे बालकोनीज, व्हाइट वॉश, पैनल ग्लासेस, विंडोज, और ये फर्नीचर भी ब्रिटिश के है। इजी चेयर, सोफा, टेलीफोन 1930 के। पहला पिक्चर में एक छोटे सा बच्चे जो है वो हमारे किरण प्रिंस है, एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, वालिद के हमरा बाहर टेरेस पे लिया है। दरमियान का जो पिक्चर इनका एक फैमिली पिक्चर है, इनके वालिद मुहतरमा और उनकी सिस्टर दूसरा किला आलतित में। लास्ट इनकी मुहतरमा वालिदा के किसी ने हाथ से पेंट की पिक्चर है। नीचे इंफॉर्मेशन में रखा गया है कि नवंबर 2006 में रानी साहिब इंतकाल कर चुकी है 103 साल में। कमरा जो है ये प्रिंस ऑफ हुंजा का सर्दियों का कमरा है। हमने गर्मियों का देख लिया, वो खूबसूरत से खिड़कियों से भरा हुआ कमरा, इसमें कोई खिड़की नहीं है। आग जलाने के बाद इन दरवाजों को बंद कर दे ताकि कमरा जो है वो लंबी अरसे तक अपना गर्माइश बरकरार रखे। इसे समर विंटर लुक अलग इस्तेमाल करते। छोटा सा जो डब्बा रखा गया है जेवरात के लिए। आज भी गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी मुकामी लोग हम इस टाइप के झूले इस्तेमाल करते बच्चों को सुनाने के लिए। कुरान मजीद की कलमी नुस्खे 18 और दूसरे जो है ये 1700 के कलमी नुस्खे हैं। बाकी ये बड़े बर्तन जो है इनमें सूप या खुबानी के जूस में निकले, वो भी सारे फैमिली मिलके एक ही बर्तन में साथ खाना खाते थे। सर का खास एहतियात कीजिएगा प्लीज अगले कमरे की तरफ आने से पहले। ये काफी बड़ा है शिदलपुर से। शिदलपुर पता है? जिससे पहाड़ और वैसे के लता मेरे को चला गया। बड़ी चेंजिंग यहाँ से स्टार्टिंग में मेरा खासा कमरा जो है ये मीरान हुंजा का अंदर दरबार है। छत पे कोई ज्यादा मौसम गर्मी हो बारिश हो, यहाँ पर आके दरबार लगाते थे। कमरे को हवादार इस्तेमाल करते थे। मौसम खराब होने के बाद इसको कवर करते थे। ये ज्यादातर ओपन एज ए टेम्परेरी कवर करते थे। चाइना के पुराने कागजी नोट है। पहली दफा हुंजा और चाइना के दरमियान करेंसी इस्तेमाल 1920 से लेकर 1930। मुकामी इंस्ट्रूमेंट है गिलगित बल्तिस्तान के। सामने एक प्यारा सा कालीन है, 200 साल पुराना कालीन, इस गिफ्ट फ्रॉम चाइना। और इस साइड पे रशियन वेपन्स रखे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे रशियंस अपने साथ कुछ वेपन्स देख रहे थे। आप में से वेपन्स के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमने इंग्लिश और दोनों में डिटेल हिस्ट्री रखे हुए। ये जो पिक्चर है ये रेनोवेशन से पहले का, उसे कहते काफी फासिदा हालत में चले गए थे। उसके बाद रेनोवेशन में इन लोगों ने सारों में हिस्सा लिए हुए हैं और कुछ चंद 2 तस्वीरें जो है एट ए टाइम रेनोवेशन के पिक्चर्स भी रखे हुए हैं। तो मोज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी, किले का आखिरी कमरा है। आई होप एंजॉय योर टूर। आपके आने का शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। फोटोग्राफी कर ले, देन वी टेक एन एग्जिट। बाहर जो तोप रखे हुए वहां पे हम मेहमानों को लेके जाएंगे। द रूम हम तासु द लास्ट रूम ने कम चे तलता मतलब नो इन्फॉर्मेशन जे माता मुंग तागा उवे मा वीडियो के कैप्चर्ड को तासु उम्मीद दे पागे बापो शेवी है नो वसपजु दे तरफ ता कता बदिसि जो दा टोल दा दगा पड़वे दि दा उगोरे दा आखिरी पोर्शन दे और द लास्ट की मंग बस कुजीको दे इंफॉर्मेशन मंग राखो द बलदेत नो शुगर दे टूर जमंगा डेर स्पेशल वसो da hum aga zede kam zigi was zada South Korean sa milaw shu no tasu da exit pamon ka was parachute wala di da margiri wa chi parachute te ta cho kam de
دغه دی کلوز را روان دي دا پیراشوټ ول دی دا را روان دي دا به هم ډېره زیاته مزه کوي چې سړی به دې کې وګرځي زما ډېر شوق دی چې زه په پیراشوټ کې وګرځم او راشم پکې داسې مزه وکړي دا زموږ اخري قله وه مطلب بلتید قله وه کوم چې موږ ته ډېر زیات انفارمیشن موږ له راکړو او ویډیو ډېره زیاته اوږده شوه نو زموږ سره ټایم هم ډېر کم دی التید قله چې ده نو هغې ته بیا تلل هغې ته ټور کول او بیا ډېر زیات چې دی که نه ټایم لګي نو موږ به کوشش کوو چې هغې ته لاړ شو که لا نه ړو نو بیا به زه بلاګ اینډ کوم او بلکې اینډ کوم مونږه الحمدلله خپل ټریپ چې دی کمپلیټ کو نو اوس مونږه ډایرکټ روح کړی دی خپل کور طرف ته او شکر دی الحمدلله سیفلی مونږ خپل دغه پوره کو او اوس دعا کې یاد ساتئ چې مونږ سیفلی سوات ته ورسو سوات مینګورې ته دعا کې یاد ساتئ او چینل سبسکرایب کړئ شیر کړئ لایک کړئ او بیا ملاویږو په بله ویډیو کې او د الله په امان الله